افغان ورکر فیڈریشن، قائد مزدور جنرل سیکرٹری CDA مزدور یونین CBA چودھری محمد یاسین صاحب کو بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے۔ CDA مزدور یونین، چودھری محمد یاسین، چودھری تیرے جان نثار، بھرپور تالی کا جواب دے، چودھری تیرے جان نثار، چودھری تیرے جان نثار، چودھری تیرے جان نثار، آ گیا چودھری، چھا گیا چودھری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، چودھری محمد یاسین، CDA مزدور یونین، آ گیا چودھری، آ گیا چودھری۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب العزت کے بابرکت نام سے کرتا ہوں جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے، جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قابل احترام CDA مزدور یونین کے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام مرکزی عہدیداران اور میرے سامنے پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام ڈائریکٹریٹوں کے نمائندگان اور میرے عظیم محنت کا ساتھیوں، میری قابل احترام بہنوں، آپ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج کا جو ہم نے اجلاس بلایا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم آپ سے اپنا ایک تنقیدی جائزہ لیں کہ کیا 8-9 مہینے کے اندر CBA کی قیادت صحیح سمت کی طرف جا رہی ہے یا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے حبیب پاک کے صدقے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور مسائل ہیں جو ابھی کرنے ہیں۔ وہ ممکن تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر یکجہتی ہو، اتحاد ہو، اور آپ ایک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم سارے جڑ جاتے ہیں تو پھر ہم ایک طاقت بن جاتے ہیں۔ میں نے اس لیے شفیع اللہ سے کہا، وہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور کمیٹی کے اندر بہت سارے اراکین ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ یہ پلاٹوں کی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو متحرک ساتھی ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، میں نے کہا ان سے کہ آپ وضاحتاً بتا دیں کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے تفصیل آپ کو بتا دی، مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ فائنینشلی معاملات بھی آتے ہیں۔ اب آپ نے سمجھا ہوگا کہ یہ کمیٹی کو کیوں پیسے کی ضرورت پیش آ گئی۔ وہ بھی اس نے وضاحتاً بتایا کہ جب ہم CDA سے کہتے ہیں کہ اپنا سرویر بھیجیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وہ کیمرے ہی نہیں ہیں جس سے ہم نے سروے کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے تو آپ کے لیے، ہم چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اس پلاٹ کی امید میں دنیا سے چلے گئے، بہت سارے لوگ ریٹائر ہو گئے۔ تو یہ بڑا دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ 4 سال 5 سال سے جو لوگ یہاں CBA کی حیثیت سے بیٹھے تھے، صرف فیس بک پہ چلاتے رہے، اس کی بنیاد تھی ہی نہیں۔ تو لہٰذا ہم نے دیکھا اس میں مشکلات کیا ہیں۔ تو ان میں یہ بھی ایک مشکل ہے جو شفیع اللہ نے بتائی کہ جب ہم نے باہر سے کیمرے والا ہائر کیا تو اس نے 1,65,000 روپیہ مانگا، جو ہم نے اس کو دینا ہے یا دے دیا، جہاں سے بھی دیں گے ہم دیں گے، لیکن اس کا مقصد آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ مجھے پتا ہے، میں نے زندگی آپ کو دی ہے، آپ نے مجھے دی ہے، ہم سارے ہم سفر ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کتنے کی فراغ دلی کرتے ہیں۔ آپ نے ہر موقع پہ یہ دیکھا
کہ چلے یہ کہتے ہیں ان کی سن لو, خود کریں گے, ہم کریں گے اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ تھی, سب سے بڑی جو مجھے تکلیف ہوئی وہ یہ ہوئی کہ راتوں رات CDA بورڈ نے 150% اضافہ افسران کی تنخواہ میں کر دیا. ایک افسر کو 50 سے لے کے لاکھ سے بھی اوپر تک کا فائدہ پہنچایا گیا. ان ظالموں کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ جو 15,000 کارکن ہیں, یہ جو اس ادارے کی اصل شان ہے, جن کو ادارہ کہا جاتا ہے, وہ بھی اسی شہر میں آباد ہیں. آپ کے پاس تو پہلے ہی بہت ممبرات ہیں, بہت بڑی خلیج ہے افسران اور مزدوروں کے درمیان. آپ کو بہت ساری مراحت ہیں جو ہمیں نہیں ہیں. کام ہم کریں. اور آپ جب سمری بنا رہے تھے گھنٹے کے اندر, تو آپ کو یہ کیوں نہ خیال آیا کہ جن کی بنیاد کے اوپر آپ یہاں شیش محل میں بیٹھے ہوتے ہیں, کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, 4 گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, برات لیتے ہیں, اس کارکن کے بارے میں کیوں نہیں آپ نے سوچا؟ میرے خیال میں یہ تھا کہ کارکن تڑپ جائے گا, کارکن ہمارا آ کے ہم سے پوچھ گچھ کرے گا. لیکن یہ عجیب سی بے حسی کی زندگی ہے کہ کسی نے تذکرہ تک نہیں کیا کہ جی اتنا بڑا فرق پڑ گیا. ہم CDA ہیں, ہم اصل ادارہ ہیں, اصل ادارہ کارکن ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر جو 10 سے 1200 لوگ ہیں, وہ 150% کہیں حکومت نے اعلان نہیں کیا. یہ بھی آپ کو بتا دوں, حکومت نے مخصوص وہ بھی غلط کیا ہے. میں وزیر اعظم سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جب آپ مخصوص لوگوں کو برات دیتے ہیں تو یقیناً آپ کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت کے لیے وہ آسانیاں پیدا کریں گے, تو پھر آپ عوام سے کٹ جاتے ہیں. عوام یہ دیکھ رہی ہے ناانصافیاں, اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے CDA کے افسران نے ایک ہی دن کے اندر ایک سمری بنائی. آدھا گھنٹہ لگتا ہے, جو آپ کی سمریاں بننے پہ کئی سال لگتے ہیں. کتنی دفعہ مجھے جانا پڑتا ہے کہ ان کے لانسز نئے بڑھا دیں, ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیں. تو وہ کبھی ڈائریکٹر HRD کی ڈیوٹی لگتی ہے, کبھی DG HRD کی ڈیوٹی لگتی ہے, لیکن وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی. پھر یہ آدھا گھنٹے میں بنی, اور CDA بورڈ بلا شبہ کمپیٹنٹ ہے. میں مانتا ہوں, میں نے اس دن یہ کوشچن اٹھایا. اگر آپ کو پتا ہو کہ جب چیئرمین CDA صاحب کا عامر احمد علی صاحب جا رہے تھے تو ہماری ٹیم بھی ساتھ تھی. ہم وہاں, میں نے کانفرنس ہال کے اندر یہ بات اٹھائی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے, اصل ادارہ ہم ہیں, کارکن ہم ہیں. تو وہاں ہمارے ممبر فائنانس صاحب بہت محترم ہیں, رانا شکیل صاحب نے کہا تھا کہ CDA بورڈ کمپیٹنٹ ہے. تو میں نے 3 دفعے دوہرایا تھا, اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو میں نے کہا CDA بورڈ کمپیٹنٹ ہے نا جی؟ انہوں نے کہا جی ہے. تو میں نے کہا بالکل میں بھی مانتا ہوں کہ CDA بورڈ کمپیٹنٹ ہے. اب میں دیکھتا ہوں CDA بورڈ کو, میں نے باقاعدہ آپ کا دیوان دی ہے, میں نے 200% اس کا جو بھی نام رکھے, میں نے نان گزٹڈ الاؤنس رکھا ہے. ان کو جو پسند آتا ہے رکھ لیں, یہ یوٹیلٹری الاؤنس رکھ لیں, یہ مہنگائی الاؤنس رکھ لیں, لیکن ہمیں 200% دینا ہے. انہوں نے آپ یہاں پہ, آپ کو بلانے کا ایک یہ بھی مقصد تھا. بہت سارے ساتھی روز آتے ہیں دفتر میں, یونین آفس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا, ہماری یہاں مرکزی قیادت بیٹھی ہوئی ہے, کہ اس کے اوپر کبھی آپ نے ڈسکس تک نہیں کیا, وجہ کیا ہے؟ تو چلیے ان کو بلا کے یاد کراتے ہیں. ابھی آج میں آپ کے مختلف ساتھیوں کو سن رہا تھا, تو یقیناً 1-2 ساتھیوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. یہ نہیں میں چاہتا تھا کہ ہم نے تو اسی دن اٹھا لیا, ریکارڈ سے بتاتا ہوں, اور اس کے اوپر 3 پرپوزلیں بنی.
चूंकि चेयरमैन सीटीए तब्दील हो गया, होते रहते हैं, हुकूमत रोजाना ट्रांसफर पोस्टिंग करती, सरकारी मुलाजमीन है, आप रोज देखते हैं फलां को सेक्रेटरी लगा दिया फलां। अब जो नया चेयरमैन साहब आए हैं उनसे बतौर चीफ कमिश्नर हमने भी अपनी टीम के साथ जाके उसको वेलकम किया, जो हमारी रवायात हैं। और अभी बतौर चेयरमैन मैं उनसे मिलना चाहता था अपनी टीम के साथ, तो इसके साथ ही मैंने जरूर समझा कि आप सब लोगों को इत्मीनान में लूं, आपसे पूछूं कि ये जो हमने काम किए हैं, यहाँ 141 का भी जिक्र आया, अब ये सब मेरे रब का कर्म है। ये मैं हमेशा कहता हूं कि ये सब तुम्हारा कर्म है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, हम कहां थे इस कर्म के काबिल, ये हुजूर की बंदा परवरी है। अब बताइए, ये लोग 9 महीने पहले इनको नौकरियों से निकाल दिया गया, तो कौन था सीपी उस वक्त? कौन यहाँ रोजाना मजमून के लगाता था कि आए आज आपकी डीआरसी हो रही है, सिर्फ अपनी जलसे करने के लिए? कौन कहता था आज F9 पार्क एनवायरमेंट में तशरीफ लाए, आज वहां पे आपकी डीआरसी होगी और आपको लेटर देंगे? ये सब झूठ था और फ्रॉड था। और बिल आखिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने जद्दोजहद की, मैं अपोजिशन में भी उनके साथ चला, वो गवाह है। अगर आज वो 141 बंदे यहां आए हों, आना तो चाहिए ना उनको, जिनको अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक के सदके हमारी काविशों से सीटीए बोर्ड से ये मनवा लेना कोई आसान काम नहीं है। हमने निकाल दिए, हाई कोर्ट ने ये कह दिया, हमने कहा हम भी हाई कोर्ट का एहतराम करते हैं, लेकिन सीटीए बोर्ड कॉम्पिटेंट है कि अगर ओवर एज हैं तो हमने इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी दफ्तर के अंदर हमने 2000 से ज्यादा लोगों को रेगुलर करवाया। और हमने ये पॉलिसी बनाई जो आज यहाँ पे मैं बैनर्स देख रहा हूँ, मुझे दुख बड़ा हो रहा है कि अभी सामने बैनर लेके खड़े हुए हैं, आपने तो तवज्जो भी नहीं दी होगी उनकी तरफ, क्योंकि आपका ये मसला नहीं है। मैं कहता हूं कि हमें दर्द होना चाहिए एक दूसरे का। मैं कहता हूं कि हम सब एक हैं, हम मजदूर हैं, हमारा रंग नस्ल और मजहब से बालातर होकर हम सब मजदूर हैं। तो ये भी तो मजदूर है, कंट्रैक्ट के मुलाजमीन जो हैं। हमने पॉलिसी बनाई थी कि जब 2 साल पूरे हो जाएं डेली वेज या कंट्रैक्ट के, तो उनको मुश्किल कर दिया जाए। आज क्या वजह है कि पीएम पैकेज के लोग बच्चे जो हैं उनके क्वार्टरों के मसले हैं, उनकी रेगुलराइजेशन के मसले हैं। ये हमारे डिसेबल भाई, ये अल्लाह ताला की मखलूक हैं, हमारे भाई हैं, ये इदारों में काम करते हैं, इनके मसाइल हैं। ये कल मेरे पास आए थे तो मैंने इनसे कहा था कि हम डिसेबल के लिए हर सतह पे कोटा रखना चाहते हैं, हम आपकी प्रमोशन में भी कोटा रखना चाहते हैं, हम अकोमोडेशन के अंदर भी, क्वार्टरों की अलॉटमेंट में भी कोटा रखना चाहते हैं, हम इसी तरह आपके बच्चों की भर्ती के लिए भी कोटा रखना चाहते हैं। ये हमारी ख्वाहिश है। अब हमारा काम क्या है, यूनियन का क्या काम होता है कि आवाज उठाना, आवाज उठाना आपके मसाइल पे, आपके दुखों के बतावे के लिए। अब वो आवाज तब मजबूत होगी कि अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो वो कमजोर होगी और सारी कौम का नुकसान होगा। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, फिजिकली नहीं। उससे मैंने हमेशा गुरेज किया है। हालांकि हमारी सियासत में, ट्रेड यूनियन में, बजाय वेलफेयर के हम इसी तरह की हरकतें करते हैं। मैं उसके हक में नहीं हूं। मैं कहता हूं कि ये जो फरीजा आप सबको मिला है, ये जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा नेक फरीजा है। ये अल्लाह ताला ने आपका चुनाव किया, मेरा चुनाव किया, मेरे साथियों का चुनाव किया है अपने बंदों की खिदमत के लिए, जिसके बारे में अल्लाह ताला का खुद फरमान है कि ये सबसे बड़ी इबादत है। तो ये खुश नसीब हैं सब लोग जो मेरे पीछे आगे स्टेजों पे सामने बैठे हुए हैं कि जो नुमाइंदगी कर रहे हैं अल्लाह की मखलूक
की खिदमत के लिए अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, तो फिर ये क्यों उसमें बदयांती करते हैं, फिर ये उसमें सुस्ती क्यों करते हैं? कितनी देर जी लेंगे, जाना है ना अल्लाह के पास। अब जरा इस पे देख लें, ये तंजीमी बात हुई थी। हमारे सुप्रीम हेड साहब कह रहे थे मैं अक्सर खफा रहता हूं, अब एज फैक्टर भी है, बार बार जब मैं एज फैक्टर की बात करता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक भी उनसे हमारे जज्बे जवान हैं। मैं ये बात जरूर कहता हूं कि जब से हम कोरोना से उठे हैं वो स्पिरिट में कमी आई है, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जब हम यहां पे नहीं आते। अब जब इतना बड़ा वाकया हुआ 150% की, फिर बात करता हूं तकलीफ मुझे क्या है जो मैं आपसे आज बात करना चाहता। मुझे कोई बंदा कहे कि हमने सब कुछ छोड़ा, जहां जहां थे हम भागे आए दफ्तर यूनियन, और हमने, आप थे भी नहीं, हमने आपको घर से बुलाया या किसी दफ्तर से बुलाया कि आइए सर हमारी कौम के साथ क्या हो रहा है, और ये यश कर रहे हैं। क्या हमारे लिए अलग स्टोर बन गए हैं कि उसमें से सीडीए के जो छोटे मुलाजमीन हैं 1 से 16 तक, इनको सस्ता घी मिलेगा, सस्ता आटा मिलेगा, सब्सिडी दे दी है चेयरमैन सीडीए ने, बोर्ड ने। तो ये बोर्ड कौन होता है इस तरह की नाइंसाफियां करने वाला? मैं आज इस प्लेटफॉर्म से पूरे अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ से मुतालबा करता हूं कि 200% जो मैंने आपको, तमाम मेंबरान को, चेयरमैन साहब को, सबको खत लिखा है, हमारी तनख्वाह में फौरी तौर पे इजाफा किया जाए, और जितनी असामियां खाली हैं सीडीए के अंदर, बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत की कमी है जिसकी वजह से इदारे की कारकर्दगी मुतासर हो रही है, और आप ठेके पे दे के माल कमा रहे हैं, जेबों में डाल रहे हैं। उस जगह पे जो वैकेंट सीटें हैं वो फौरन मिनिस्ट्री इंटीरियर से एक खत भेज के अप्रूवल लें और उनकी जगह पे मुलाजमीन के बच्चे भर्ती करें। 25% हमारा कोटा है, आप हमारे साथ सही चलेंगे तो अमन रहेगा। अमन तरक्की का रास्ता है। जिन कौमों ने, जिन मुल्कों ने तरक्की की वो अमन की बुनियाद के ऊपर, मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर। वहां तफरीक नहीं थी कि कोई अमीर है तो इतना है कि उसको दौलत का नहीं पता, कोई गरीब है तो इस हद तक है कि वो रोजगार की तलाश में है, उसका चूल्हा नहीं जलता। तो ये आप सोच लें। मैं सीडीए बोर्ड से, सीडीए इंतजामिया से गुजारिश कर रहा हूं, मैंने अदब की, प्यार की, मोहब्बत की सियासत की है। मैं आपकी मोहब्बत में अपने इन कारकुनों को नहीं खो सकता, ना इनको भूल सकता हूं। बहुत वाज़ेह बात है। मैंने चूंकि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, चौधरी मोहम्मद यासीन, चौधरी मोहम्मद यासीन। अब चूंकि हमारे चेयरमैन साहब कैप्टन उस्मान साहब ने अभी एक हफ्ता पहले ही सीडीए के चेयरमैन का चार्ज संभाला है, वो चीफ कमिश्नर भी हैं। मेरी इन इश्यूज के ऊपर उनसे बात नहीं हुई, लेकिन मैंने तहरीरी तौर पे दूसरे दिन ही आपकी तरफ से जो मेरा हक बनता था, हमारा, हमने ये डिमांड दे दी थी और बड़ी जेन्युइन डिमांड है। तो मैं यकीनन चेयरमैन साहब से पहले मुलाकात करूंगा अपने साथियों के साथ कि हमारे साथ ये जो नाइंसाफी जाते जाते हुई है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसी तरीके से जब 141 साथी जो हैं वो आपने ओवरेज थे या क्वालिफिकेशन कम थी, वो वन टाइम रिलैक्सेशन दी है, हम आपका
शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये तवक्को रखते हैं कि ये जो बाकी बंदे आपने जबानी निकाल दिए थे उनके भी चूल्हे बुझे हुए हैं। रियासत या मुल्कों की जिम्मेदारी, हुक्मरानों की जिम्मेदारी लोगों को रोजगार देना होता है, लोगों को सेहत की सहूलतें देना होता है, लोगों को तालीम की सहूलतें मुहैया करना रियासत की जिम्मेदारी है। और ये कैसी रियासत है, इसमें ये कैसे हुक्मरान हैं कि ये बजाय रोजगार देने के लोगों से रोजगार छीन रहे हैं। तो मैं ये भी मुतालबा करता हूं आज कि उन साथियों को भी जो 50 हैं, 55 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं, जिनको जबानी, ये पार्लियामेंट है, पाकिस्तान के कवानीन है, लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी है, किसने इख्तियार आपको दिया कि आपने कहा कल से आपने नहीं आना? उन सबको भी बहाल किया जाए और उनको उनकी नौकरियों पे बहाल किया जाए ताकि उनके चूल्हे भी जाए। तस्करा कर दिया, मैं ज़िम्नन कर देता हूं कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स, डिग्री, हमारा प्राइमरी का सर्टिफिकेट भी डिग्री है, इनकी डिग्री भी डिग्री नहीं है। ये क्या कमालात हैं इनके। हमारा मिडिल का सर्टिफिकेट डिग्री में आता है और इन यहां पे जो ग्रेड 19 में बैठे हुए हैं, मैं बहुत मुताहत हूं। मैं फिर उनसे कहता हूं आप भी ठीक हो जाएं, रवैये ठीक कर लें। मैं एक एक को जानता हूं, मुझे पता है कि सीटीए में कितने लोग इस वक्त ग्रेड 19 में बैठे हुए हैं और वो 3rd डिवीजन है, या कितने लोग ग्रेड 18 में बैठे हुए हैं जिनकी डिग्रियां दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो मजदूरों को के लिए फौरी तौर पे आता है कि जिसका प्राइमरी का सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, 25 साल उसकी नौकरी है, जनाब जवान उसकी बेटियां हैं, उसने जिंदगी दी है और आप उसको उसकी बुनियाद को तो नौकरी से बरतरफ कर देते हैं। आपको पता है कि आपके पिछले दवार में इस तरह कितने लोग निकाले गए। ये फिर मेरे रब ने हमारी टीम से काम लेना था। लेकिन इसमें एक बात सुन लें, मेहनत, खलूस और नीयत का अमल दखल बहुत है। अगर आप ये समझें कि जी ऐसे काम हो जाएगा या खाली दुआओं से काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ने कहा जितनी जद्दोजहद करोगे मैं उतनी ही आपको कामयाबी दूंगा, जितनी मेहनत करोगे मैं उसका सिला दूंगा। मेरे रब के यहाँ नाइंसाफी नहीं है, बंदे करते हैं तो हम उनके साथ भी चले। आपने देखा कि वो हमने सारे बहाल करा दिए, कुछ हमने कंपल्सरी रिटायर करा दिया। अब जब कंपल्सरी रिटायरमेंट शुदा है, जबरी जिसको कहते हैं जबरी तौर पर रिटायर कर देना, तो मेरे पास तो एक मिसाल है ना, एक मरहूम फरद कमाल पाशा होता था, वो करप्शन में निकला, उसको अदालतों ने भी फारिग कर दिया। आखिर में जैसे रहम की अपील नहीं होती, रहम, तो रहम की अपील में यह फैसला हुआ कि इसे जबरी रिटायर कर दिया जाए ताकि इसे कुछ पेंशन वेंशन मिल जाए। अब मैं वही केस सरदार नसीम को मैंने बताया, इनका एक बंदा साथी था, सारी जिंदगी दी उसने, को भट्ट साहब थे, उस वक्त हम अपोजिशन में थे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह मेहरबानी करेगा। जब सबसे बड़ा लीडर जो यहाँ कहलाता था वो करप्शन में निकला, तो ये तो प्राइमरी का सर्टिफिकेट, ये मिडिल का सर्टिफिकेट जो है ये टेक्निकल पोस्ट है और इसे मिनिस्ट्री वालों को बताएं और इन्होंने मेहनत की। तो अब बताइए ये 2-3 शख्स दिल से भागते रहे, इनके पास कौन सी ताकत थी, ईमानी ताकत थी? ये चाहते थे कि ये गरीब हो। आखिर हमारे कैंप के अंदर मैंने उसे लेटर दिया, ये लेके आए, उसे कंपल्सरी रिटायर कर दिया, उसे तमाम बकाया जात जो थे वो मिल गए। तो एक टाइम था इलेक्शन में, वो जैसे यहाँ कहा ना कि मसाइल तो तब तक रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं।
वो थी तो हफ्ते की छुट्टी, वो हमने करवा दिया। 141 का केस हमने खुद ही ले लिया, तो हमारे मंशूर का हिस्सा तो नहीं है ना, इसलिए कि ये इस अदारे में काम करते थे, वो भी अल्लाह ने कामयाबी दे दी। वो जो फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिग्री लफ्ज कैसा इस्तेमाल करते, डिग्री पढ़ने वाला अखबारों में भी यही जाता है कि जनाब को MA PhD की डिग्री थी, तो पता चाहे टैंकर इंक्वायरी में सैयद है, काम करता है, उसका मेडिकल का सर्टिफिकेट, ट्यूबवेल ऑपरेटर है, तो ये डिग्री का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। हम समझते हैं इनकी चालाकियों को। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ कंपल्सरी रिटायर कराए और उनको डिमोट करा के वो भी करा दिए। इसके साथ साथ हमने जब रोजों के अंदर रोजे आए, जैसे अभी हम महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, इनको पकड़ के निकालूंगा मैं, आप मेरा साथ दें। ये 200% कोई मसला नहीं है, मैं इनको पकड़ के बाहर ले आऊंगा, इसलिए कि जब ये नाइंसाफियां करेंगे तो फिर मैंने हमेशा इनसे कहा कि बैठ के बात करो, टेबल पे डायलॉग की सियासत करते हैं सारी जिंदगी, नहीं जब आप हमें बुलाएंगे, नहीं हमें बिठाएंगे तो फिर वायलेंस होगा, फिर झगड़ा होगा, फिर हमने आमा का मसला पैदा होगा। वो जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। हम तो बैठना चाहते हैं, क्यों नहीं आपने हमें बुलाया? तो ये बातें ओवर टाइम हो को दूसरा, ये आपका राइट है। आपको पता नहीं, मैं यहाँ पब्लिक प्लेस पे यकीनन एजेंसियों वाले भी होंगे, मैं अपना अदारा है, अपने अदारे की इज्जत की खातिर बहुत रिजर्व हूं, और जिस दिन मैं बोल पड़ा, ये मैं फिर बताता हूं उनको, जिस दिन मैं बोल पड़ा मेरे सीने में बड़े राज हैं, फिर कुछ नहीं बचेगा। आप भी यहां नहीं बैठेंगे, बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जो हमारा हक है वो हमें दे दिया करें, जो आप है आप जो मर्जी करें। बहुत अदारे हैं इस मुल्क के अंदर, वो जाने, उनका काम जाने। हम इस शहर को बनाने वाले हैं, हम इस शहर को तामीर करने वाले हैं, हम इस शहर को सरसब्ज जो शदाब कहलाने वाले हमारा एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट है, हमारी तमाम डायरेक्टरेट जो हैं वो इस तरह काम कर रही हैं कि अब इस्लामाबाद के शहरी भी इसराते हैं। आप करें टेंडर, आप पाइप इधर से निकाले उधर डालें, आप कोटेशनें भी करें 5-5 लाख की, आप टेंडर भी करें, लेकिन गिरफ्त आएगी, यहीं पकड़े जाओगे। अगर यहां न पकड़े गए तो अगले जहां तो पकड़े जाओगे ना, वहां कौन आपका माइती होगा? इन गरीबों की दुआएं ले लें, दुआएं बड़ी मुसीबतें डाल देती हैं। आप दुआएं नहीं ले रहे, आप हर चीज अपने पेट में डाल रहे हैं, और हमारा हिस्सा जब आपके पेट में जाएगा तो मरोड़ पड़ेंगे, और फिर हमें हाथ डालना आता है। हमें सिर्फ खुदा से डरते हैं, एहतराम करते हैं, अदब करते हैं, लेकिन आपसे भी शफकत का के मतमन्नी है। कहाँ है शफकत? आप वहां बैठे, आपके पास 4 गाड़ियां भी हों, आपके पास बंगले भी हों, सरकार का पेट्रोल भी हो, और आज का ये महंगाई का जो दौर है, मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मैं वो आपको एक तनख्वाह ईद में मिली, अल्लाह ने दी, मैं कौन हूं, 17 वो वहां गुलशन मार्केट से, तो मैंने थोड़ा सा सामान लिया तो उन्होंने 17,000 रुपए का बिल बना दिया। तो बस मैं रात को जाकर सोचता रहा कि अच्छा, आम आदमी, हम सारे आम आदमी मिडिल क्लास के लोग हैं, कैसे जिंदगी बसर करेगा? चूंकि रमजान शरीफ में सारे लोगों की ख्वाहिश होती है इफ्तारी अच्छी हो, उसमें अखराजात बढ़ जाते हैं, आयल ज्यादा लगता है, ड्रेसिंग लाना पड़ता है, तो सारी भी अच्छी हो तो दही भी लाना पड़ता है। तो ये 17,000 का अगर इतना सौदा आया जो मेरी गाड़ी के एक लिफाफे में रखा उन्होंने, तो फिर आम मेरा मजदूर जो मेरा साथी हो, मेरी तरह का है, वो कैसे जिंदगी बदल? मैंने आते ही यहाँ कहा कि 2 तनख्वाहें दी जाए। हमने जद्दोजहद की। अब मैं जरा ये आपको बता दूं इसमें कितना टाइम लगा, तब मैं कहता हूँ करके तो देखो, और नियत तो करो कि हमने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी। तो 2.5 घंटे लगे जी, 2.5 घंटे, सबसे बासी दुआ है, 2.5 घंटे के अंदर हमने आपको तनख्वाह ले दी। चौधरी मोहम्मद यासीन, चौधरी मोहम्मद यासीन, चौधरी मोहम्मद यासीन।
चौधरी चौधरी तेरे जान निशान 2.5 घंटे के अंदर हमने 2 की बजाय 1 तनख्वाह आपको ले दी। हमें ये सुकून हुआ कि चले जो हमारे गरीब भाई हैं, मजदूर है सीडीए के, मेरा कुनबा है, मेरे ख़ानदान के लोग हैं, ये जो बच्चे हैं इनके हमारे बच्चे हैं, अब ज़रा बेहतरी यानी थोड़ी सी अच्छे तरीके से इफ्तारी और सारी कर लेंगे। फिर हमारे ज़हन में आया ईद आ रही है, तो ईद की खुशियाँ दोबाला करने के लिए आपको पैसे चाहिए। आपके बच्चे डिमांड करते हैं कि अब्बू मुझे कपड़े लेके दें, बेटियां कहती हैं कि हमें कपड़े लेके दें। कहाँ से लेके दें आप? फिर हमने सोचा कि नहीं, मैंने एनवायरनमेंट के जलसे में कहा था ना कि 2 तनख्वाहें ग्रास, तो वहाँ फैसला ये हुआ कि नहीं 2 बेसिक देंगे हम। तो हमने कहा जी ठीक है, हमने उससे भी ज़्यादा ले लिया। तो उसमें भी मैंने देखा कि मजदूर नहीं, लेकिन मजदूर के किसी बच्चे की, किसी बेटी की, किसी बहन की, किसी माँ की दुआ जरूर हम सबको मिली होगी। तभी तो हम आपके सामने खड़े हैं। एक बात मैं तंजीमी अमूर से करना चाहूँगा। तकरीबन आपने बताया महमूद साहब ने कि हमें 8 महीने हो गए, तकरीबन साल कह लें। अब मैंने सारी सीबीए कमेटियां जो आपने बनाई, आपने बनानी थी, मैंने कर दी। 1 साल गुजर गया या गुजरने को है। अब मेरी गुजारिश है कि अगर आप सीबीए कमेटियों में जहां महसूस करते हैं कि वो काम नहीं कर रही उस तरीके से जैसे करना चाहिए, तो आप सीबीए कमेटियां चेंज कर दें। ये आपका इख्तियार है। मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि जहाँ आप देखते हैं कि उसने सिर्फ लेटर लिया, किसी की सिफारिश पे ले लिया, आवाम के लिए वो कुछ नहीं कर रहा, उसकी आड़ में सारा दिन वो फारग फिरता है। और एक तो ये आपका इख्तियार है, वो बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, मुझे इसका गिला नहीं आना चाहिए कि चौधरी साहब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और उन सब नुमाइंदों से मेरी दरख्वास्त है, मोतबाना दरख्वास्त है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, वो लोगों के मसाइल पर तवज्जो दें, और वो मसाइल जो उनके उस तरफ डायरेक्टरेट में हल नहीं होते, यहाँ होने हैं, वो हमारे पास आए, हम उनके मसाइल हल करेंगे। मरकज़ी टीम से भी मेरी दरख्वास्त है कि हमें जब इस तरह का अपने अपने हलकों में लोग काम कर रहे हैं, उनको करने दें, बल्कि उनको तैयार करें, उनको ट्रेन करें। जिंदगी मौत है, जो आया उसे लौटकर आपके पास जाना है। हमने सारी जिंदगी ट्रेड यूनियन की है। हम चाहते हैं कि अब जो हमारे ये साथी जो हैं, इनकी हम सरपरस्ती करें, ट्रेनिंग दें, ताकि कल अगर हम ना हों तो वो बागडोर संभाल सके, उस घर की रखवाली कर सके। तो ये मेरी सबसे दरख्वास्त है कि जो मरकजी अहदेदारान हैं, जिनको इतनी इज्जत मिलती है, उनका भी ये फरीज़ा है कि जब इस किस्म के मसले होते हैं, नाइंसाफ़ी होती है, तो हमें फौरी तौर पे सारे काम छोड़ के अलग बैठ के वो अपनी टीम को सोचना चाहिए कि अब हमने आगे क्या करना है। हो सकता है मैं अकेला, तो खुदा की ज़ात अच्छी लगती है, तो कोई भी अकेले कुल नहीं है। जो अकेले कुल समझता है वो आमक है, अपने आप को अकेले कुल समझने वाला आमक होता है। तो मैं सारा टीम वर्क है, सबका अपना अपना रोल है। अगर टीम नहीं तो मैं कुछ नहीं। ये वाज़ेह तौर पे बता दें कि टीम वर्क है, नज़्म ज़ब्त है, एहतराम है एक दूसरे का। जो मैं समझता हूँ कि फुकदान है, हमारे यहाँ नहीं, शायद सारी जगह ही होगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा है। कुछ लोग तंजीम का शेल्टर इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ शेल्टर, छतरी नहीं, जैसे धूप में इस्तेमाल की, बारिश आ गई, छतरी रखी, उसके बाद फेंक दी। बहुत सारे लोग हैं कि वो शेल्टर के तौर पे तो उसको इस्तेमाल करते हैं,
کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں, کسی انکوائری میں پھنس جائے وہاں پہ بھی. تو جب ضمنی واٹر سپلائی کا جو ڈپٹی ڈی جی ہے تو وہ ہمارے ساتھیوں کو جا کے موقع پہ سائٹ پہ ابیوز کرتا ہے, میں لفظ ابیوز استعمال کر رہا ہوں, میں وہ الفاظ استعمال کر ہی نہیں سکتا, میری زبان ہی ایسی نہیں ہے. تو گریڈ 19 کا افسر جو ہے جب ہمارے ساتھی کسی کو ابیوز کرتا ہے تو پھر تو ہمارے اندر غیرت آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ تو پھر کیوں نہیں آتی؟ یہ کیا بات ہے؟ پھر ہم نے بانٹا ہوا ہے کہ یہ میرا ہے, یہ اس کا ہے, یہ بشیر فلاں کا ہے, جدون فلاں کا ہے, وہ جانے نہیں. یہی تنظیم کا نام ہے کہ جب کسی ایک ساتھی کے ساتھ کام کرتے ہیں, نہیں کرتے, سسپینڈ کرتے, چارج شیٹ کرتے ہیں, لیکن کسی کو ابیوز جب کرے گا کوئی, آج میں کہنا چاہتا ہوں سن لیں سی ڈی اے کے افسران, تو پھر ہم اس شخص کا اس کے دفتر میں یا اس کے کنسرن ممبر کا اس کے دفتر میں گھیراؤ کریں گے اور نہیں جانے دیں گے جب تک وہ معافی نہیں مانگے. عزت نفس سب کی ہے, کسی وہ زیادہ نہیں ہے کہ وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے, ایک ایک بات سے واقف ہوں. اگر وہ باتیں شروع کر دی نا تو پھر گھر نہیں بیٹھ سکو گے, پھر اس ہتھکڑیوں میں اندر جاؤ گے. میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کی فکر ہے, ہم اپنے گھر کے اندر اس کمیاں جو ہے ان کو اس طرح پبلکلی بیان نہیں کرنا چاہتے, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اشارتاً وہ سمجھ لیں. جو لوگ اندھاتا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو ناخدا سمجھتے ہیں زمین پہ اپنے آپ کو, بڑے بڑے ناخدا آئے اور چلے گئے, نیست و نابود ہو گئے, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں واٹر سپلائی کے اندر زمین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا لہجہ درست کر لیں. ہمارے امپلائیز کے ساتھ آپ کے بھی یہی کارکن ہے, اگر یہ نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ تو فوراً واٹس ایپ کر دیتے ہیں نا اوپر والوں کو, یہ آج کل واٹس ایپ کا دور ہے. ہمیں بہت کچھ پتا ہے, تمہیں شاید پتا ہو کہ نہ ہو. میرے پاس ویڈیو بھی ہیں, میرے پاس آئیڈیو بھی ہیں, میرے پاس ریکارڈ بھی ہے, اور میں کبھی نہیں گھبراتا. ان کو بے نقاب کرنے میں اگر میرے جیسا بندہ کھڑا ہو گیا نا تو پھر یہ ویلفیئر ایک طرف رہ جائے گی اور یہ پھر پیشیاں بھگتیں گے. اور مجھے آتا ہے تو میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میرے یہ نوٹس میں آئی, میں نے ذاتی طور پہ بھی جا کے ان سے کہا, بارہ دفعہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام کر دیں جو غلط ہے, وہ نہیں کرنا چاہتا, تو آپ فوری طور پہ اتنے باصر ہو گئے ہیں, فائل تیار کرتے ہیں, بغل میں لگاتے ہیں. دستی ممبر انجینئر صاحب, اگر میری بات آپ سید منور صاحب سن رہے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے تو کئی دفعے یہ درخواست کی ہے کہ بہت بڑا ادارہ ہے سی ڈی اے, کہ ایسے افسران جو بھی ہیں ان کی خدمات کہیں دوسری جگہ پہ یوٹیلائز کر لیں. ہمارے ورکرز جو ہے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں, اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. اور جو کرے گا, آج کے بعد ایک چیئرمین صاحب سے میٹنگ کروں گا. بہت میں نے میرے ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے, چیئرمین صاحب کا تجربہ بھی بہت ہے, اور ان کی طرف سے سب سے بڑی اچھی بات یہ تھی, تو اس نے کہا کہ جب چاہیں جس وقت چاہیں, چونکہ وہ بریفنگ لے رہے ہیں, ساتھ ساتھ چیف کمشنر بھی ہیں, تو میں نے ضروری سمجھا کہ پہلے آپ کو اعتماد میں لوں. اب یہی مطالبات جو یہاں پہ ڈسکس کی بات آئی, یہ کنٹریکٹ ملازمین جو پی ایم پیکج کے تحت ان کی ریگولائزیشن کی بات آئی, ڈسیبل کی بات آئی, ہم نے ایک ایجنڈا پہلے بنایا ہوا تھا, محمود صاحب کے پاس ہے, وہ 13-14 پوائنٹس کا ایجنڈا تھا جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا سابقہ چیئرمین سے اور ممبران سے. اس میں آپ کے ایک نئے لانسز کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے کہ ہم باقی ڈائریکٹریٹوں کو بھی چاہتے ہیں کہ کوئی لانسز دے کے کچھ مدد کی جائے, لیکن سب سے بڑا پرائرٹی اختیار یہ کر گیا کہ یہ جو مسئلہ ہے 150% کا, اب یہ بہت بڑا اضافہ ہے, اور پھر اضافہ بھی ان لوگوں کو دے دیا جن کے پاس پہلے اتنی مال و دولت ہے کہ ہر شہر میں ان کا بنگلہ ہے, ان کے بیٹوں کے پاس
आगे जो उनके दोस्त हैं उनके पास गाड़ियां हैं, मुझे पता तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर मैं ये बातें आज ज़िम्रन कर रहा हूं और फिर मैं जनरल बॉडी का इजलास बुलाऊंगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, नुमाइंदगान से, जो वहां से लेके यहाँ तक, ये सब मेरे नुमाइंदे हैं, आप मेरी ताकत हैं, किसी के बरगलावे में ना आए। हम सही सिमत जाना चाहते हैं, हमारा जमहूरी हक है। जब हम डिमांड नोट्स देंगे, जिसका महमूद साहब ने तज़किरा किया, उस पर काम कर रहे हैं रंगज़ेब खान सारे, आपने जो जो डिमांडें भेजी हैं हमने सारी शामिल की हैं। अब डिमांड नोट्स का तरीकाकार कानूनी जो है वो ये है कि हम उसको कंपाइल कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। जब सब जगह से इकट्ठा हो जाएगा, जब हो गया होगा, तो फिर हम उसको आपकी अप्रूवल से, सबसे पहले आपकी अप्रूवल लूंगा। और उस दिन मैं देखना चाहता हूं कि जिसको अपने बच्चों का मुस्तकबिल की फिक्र है, जो खुशहाली चाहता है, तो वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उस दिन जनरल बॉडी के इजलास में होगा। अगले दिन जब हम डिमांड नोट्स चेयरमैन साहब को पेश करेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और फिर हम आपको इंशाल्लाह मुज़ाकरात के बाद खुशखबरियां देंगे। ये जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जब तक हम बिल्कुल लेके आए, ना ओवर टाइम के बारे में हमारे खदशात होते हैं। मैं आज कहना चाहता हूँ, मेरे सारे मोहतरम हैं आप, कभी मैं सख्त बात करता हूँ तो उसका मकसद भी ये होता है कि कुछ थोड़ा सा तो यार असर हो जाए। जब प्यार नहीं चलता, मोहब्बत से नहीं मानते, दलील से नहीं मानते हो, तो फिर मुझे कहना पड़ता है। मैंने भी आगे जाके, या मेरे कुछ साथी साथ हो तो उन्होंने नेगोशिएशन करनी होती। अगर कोई इदारा या कोई विंग ये कहता है कि ये आपने कंप्यूटर से कागज़ निकाला हुआ है, इसके साथ एक लिस्ट लगा दें, तो मैंने इनसे कहा भी लिस्ट लगा दें, बाद में बेशक अप्रूवल जब हो जाए, आपकी एलोकेशन हो जाए, फिर आपके पास जो लोग काम करते हैं, आप उनके अपने प्रोफार्म में अपने पास रखें, उनके मुताबिक उनको दे दें। वाटर सप्लाई वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आप तो शायद घटाना बैठा हुआ, माशाल्लाह हमारी वहाँ बहुत बड़ी टीम है, उस डायरेक्टरेट से हमने कभी इलेक्शन नहीं हारा, लेकिन आप क्यों कमज़ोर बनते जा रहे हैं दिन ब दिन, कि वहाँ आपने वो लोग बिठाए हुए हैं जो आपके एंटी हैं। अब वो एंटी लोग जो हमसे तो तवक्को ना रखें ना, बेशक आप दूध की नहरें बहा दें, वो वहीं पे रहेंगे। कुछ लोग बददुआएं होते हैं और वो तारीख हमारी बताती है। कुछ लोग जो है ना, उन्होंने हमेशा यही किरदार अदा, तो उनको उनसे हटाएं। आप अपने ऑपरेटर को बिठा देते हैं ओवर टाइम बनाने के लिए, वो ऑपरेटर साहब जो हैं उसको 80,000 दे देते हैं। जो हमारा ऑपरेटर है, जो रात दिन मरता है, जिसके सर पे आप ओवर टाइम लेते हैं, उसे 6,000 रुपया देते हैं। ये मेरे लिए तकलीफ दे है, उनके लिए तो होगी, वो भी महसूस करते होंगे, दुआएं नहीं देते होंगे, लेकिन मैं बतौर लीडर जब ये चीज़ें देखता हूँ तो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। लाइए उसके साथ एक लिस्ट लगा दें उस अमाउंट की, बाद में आपके पास सारा रिकॉर्ड होता है ट्रिब्यूनलों पे, आपने प्रोफार्मे बनाए होते हैं, फिर आप उस हिसाब से दे दीजिए। लेकिन यहाँ की फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी है, तो इसलिए इसको दूसरे पराये में मत लें। हम आपके साथ खड़े हैं, जहाँ पे भी आप कहेंगे लड़ेंगे आपके लिए। आपको ओवर टाइम भी मिलेगा, आपको और चीज़ें भी मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी तब। देखना ये गर्मी का मौसम है, मैं खुद महसूस कर रहा था, मुकर्रीन बहुत ज़्यादा थे। अगर किसी मुकर्रर को मौका नहीं मिला, उससे माफ़ी चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि बड़े अरसे बाद हम, ये हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। मैंने CBA के नुमाइंदगान, मैंने मरकजी उहदेदारान और मैंने राब्ता कमेटी के मेंबरान को बुलाया था। आप इसका फैसला आप खुद कर लेना, मैं यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता। बहरहाल आप बहुत बड़ी तादाद में आए, मेरी बहनें आई, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारी बातें हम आपस में करेंगे, पब्लिकली बातें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करूँगा उस दिन जिस जनरल बॉडी का इजलास होगा। CDA के 15,000 मुलाजमीन हैं, जिस दिन आप 5,000 आएंगे, हफ्ते बाद आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। 2 घंटे अपनी जिंदगी के, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपको 2 घंटे देने हैं मुझे, और मैं अपनी टीम के साथ फ्रंट लाइन पे रहूंगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।
हर तरह की जिम्मेदारी लेके, ये हमारा जमहूरी हक है। मैंने बड़ी दफे कहा कि अगर मैं कहूँ कल से 2 घंटे आप कलम छोड़ हथियार यानी अपना काम छोड़ हड़ताल कर दें, तो ये जमहूरियत है। आपके सामने क्या हो रहा है? ये जो हमारे क्लर्क भाई हैं, वो जो वफाकी गवर्नमेंट के मुलाजिम, वो ट्रेड यूनियन वाले नहीं है, वो एसोसिएशन वाले हैं, या यहाँ पे जो बनी हुई है अफीसरों की एसोसिएशन है, इनकी कोई हैसियत नहीं है कानून में। अंजुमन साजी का तो प्रचार 1-2 वालों को भी वहां पे बनी हुई है, G8 में भी बनी हुई है। इनका लीगल सिस्टम नहीं है, लेकिन देखिए वो चूंकि क्लीन होते हैं, फिर फोटो लगा लेते हैं, 150% वो ले गए और आप रह गए, और वो लेटर ऐसे वसूल कर रहे हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, हमारी तरफ से टीम वर्क का रिवाज दिया गया। पहली दफा हमारे CBA ने ये महसूस किया कि चलिए भी अगर ईद हमें मिलती, इनको भी मिले, तो हमने हर जगह पे जब एक तनख्वाह दिलवाई, एक सुरक्षिया, तो इनको भी दिलवाई। अब मैं उन अफसरान को भी कहना चाहता हूं कि आपने ये जो हमारे साथ नाइंसाफी की है 14-15 हजार लोगों के साथ, आप हमारी वजह से हैं। मैं आपको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि आप, हम अपनी जंग लड़ना जानते हैं, हम ताकत है अल्लाह की मेहरबानी से, और हम ले लेंगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मोहम्मद यासीन जिंदाबाद, तेरा जान निसार बेशुमार और एक बात, जान निसार मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आमिर अब्बास साहब, मेंबर फाइनेंस साहब, लेकिन साथ ही मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, जनाब हमारा ये जो स्टाफ है, इनकी बात कर रहा था चौधरी जाहद, ये साल होने को है, एक बंदे की प्रमोशन नहीं हुई, नॉट ए सिंगल। ये मैं फील्ड स्टाफ की बात कर रहा हूं, और आपके यहाँ ग्रेड 19 में अफसरान आधे घंटे के अंदर गए हैं। अब आपको इस तफरीक को खत्म करना है। अगर सबसे बड़ा मेरा मुतालबा, जहां पे 150-200% उस अलाउंस की बात है, वहां अब प्रमोशनों का मसला है। हमारे जहां जहां भी है, कोई रुकावट नहीं है, ये कोई नया सिस्टम नहीं है। कब से प्रमोशनें होती आ रही हैं। डायरेक्टर लेवल पे 1 से 10 होनी है, 10 से 10 से ऊपर DG लेवल पे होनी है। मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन साहब, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जनाब चेयरमैन साहब, आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग रिटायर होने वाले हैं, बहुत सारे रिटायर होकर चले गए हैं, उनको हक मिलना चाहिए। प्रमोशनें फौरी तौर पे जहां जाएं होनी चाहिए, और लोगों को प्रमोशन लेटर मिलने चाहिए। ये इन सब बातों से आप इत्तेफाक करते हैं ना? ये तो आपकी मसला सबका ही है। तो इसलिए आपको बुलाने का मकसद ये था कि जब आप खुद कुछ नहीं कहते, आप तो इतने मुतमिन हैं कि जैसे लगता है सब कुछ आपको मिल गया, आप तो बड़े खुशहाल हो गए, बड़े 1.5 लाख रुपए तनख्वाहें कर दी CDA ने, आपकी जरूरत ही नहीं महसूस। तो आप बहुत मुतमिन थे, हम मुतमिन नहीं है, मैं मुतमिन नहीं हूं। मैं कहता हूं कि जो हमने किया, जो आपको मिला, वो आपका हक था, लेकिन बहुत सारा हक हमने अभी इनसे लेना है, तो उसके लिए लड़ेंगे हम। और वो लड़ाई तब होगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। तो फिर देखें, लड़ने में हम अल्लाह की मेहरबानी से, उसके हबीब पाक के सदके बड़े तकड़े हैं। एक दफा चेयरमैन साहब से मीटिंग होने दें, उसके बाद फिर मैं आपको अपनी टीम की मुशावरत से फिर मैं एक कॉल दूंगा, और वो कॉल जो होगी ना, उस पे फिर आपने ऐसे नहीं है, एक एक जगह जाना है जहां जितने लोग हैं, ट्यूबवेल चलता है ना चले, पहले भी अल्लाह के सहारे चल रहे हैं। दूरी मनीर अल्लाह के सहारे चल रहे हैं ना, तो इसी तरीके से अगर घास नहीं कटता तो ना कटे ना। कितने पहले अब बुश कटरों की बात कर रहा था, बुश कटरों को जनाब स्केल दे दो, अच्छी बात है उसने अपने, और भाई स्केल तो हम सबके चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये एक दिन में तो नहीं होंगे। अब आपने ये भी तो देखना है ना कि मुतालबात जो पेश करते हो, तो ये भी सोचा करें कि हमारी कितनी कंट्रीब्यूशन है इसमें, क्या हम वो किरदार अदा कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। हम तो 20 दिन बाद चक्कर लगाते हैं दफ्तर का, कहाँ है, वहां क्या हो रहा है, हमें तो नहीं पता ना, मुझे पता होता है। जहां आपने बताया कि जी वो
बकाया जात थे। मैं 2 दफे मेंबर के पास जा चुका हूं। अगर आप आके मुझे फैक्ट्स बताएं कि जी वहां आपके कौंसल अफसर साहब जो हैं उसने कोई हमें नहीं, मलिक खलील साहब तशरीफ लाए, मैं इनको साथ लेके डायरेक्टर ऑडिट के पास गया, जहां तक की स्टोरी मुझे याद है। अब डायरेक्टर ऑडिट ने कहा डिप्टी डायरेक्टर को कि कुछ ऐसा ना लिखना, क्योंकि उनको पता है कि मजदूरों के खिलाफ ही लिखा जाता है। तो ये मैं आके मुझे 1 बजे का टाइम दिया, तो मुझे मलिक खलील साहब ने फिर फोन किया कि वो जी को उस डिप्टी डायरेक्टर ने किसी और तरफ भेज दी। वो कहाँ भेज देगा वो, और तुम लोग आए तो सही ना, ये भाई हो मेरे, आके इधर कहो तो सही ना। मैं एफआर की प्रोवर है, मैं इसके बावजूद एफआर के पास चले गया। उसने बशीर को टेलीफोन किया, चौधरी बशीर कहता हूँ यार, फिर कह देगा कोई बशीर कह, चौधरी बशीर साहब को फोन किया। उसने कहा कि तुम्हें क्या मसला है। उसने क्या बात की मुझे नहीं पता, लेकिन मेंबर साहब ने कहा वो मुझसे फाइल ले आओ, मैंने वादा किया मैं कर दूं। अब जब पीछा छोड़ दोगे तो आपको अच्छा भला पता है कि इस अदारे में आपका सही हक भी आपको नहीं मिलता, और आपने बकाया जात लेने और फर्क भी महसूस करे ना, और वो भी आपने कब के लेने पुराने। तो आइए उसके लिए भी चलते हैं, और कोई मसला है उसके लिए भी चलते हैं। तो तब तक नहीं होगा अगर जब मैं अकेला यहाँ करता हूँ, मैं इनसे जो 1-2 बैठे होते हैं उन्हीं पे सारा गुस्सा निकाल लेता हूँ, अब वो भी आना जाना छोड़ देंगे। मैं जब इनसे कहता हूँ कि 150% इजाफा हुआ, कहीं से कोई आवाज आई पूरे सीडीए से। आपको आज बुलाने का मकसद ही एक था कि एक तो बेदारी आई, हमने क्या किया, हमारा फर्ज था करना था। चलिए शुक्रिया जिन्होंने उसका तज़किरा कर दिया, उससे बड़ा हौसला अफजाई होती है। कुछ लोगों ने मिसाल की निशानदेही कर दी, कुछ यहाँ बैनर लेके खड़े हुए हैं, तो मैंने आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाई। मैंने कहा कौन देखता है बैनरों की तरफ, या तो इसमें हमारी तस्वीरें लगी हुई या तो लगी कोई नहीं है, फिर तो हम देखते। अब वो है रो रहे हैं डिसेबल, वो रो रहे हैं आपके पीएम पैकेज वाले। आइए आज ऐड करते हैं सारे कि हम चेयरमैन साहब से जब मिलेंगे उससे पहले बैठ के एक हम एजेंडा तैयार करते हैं। कुछ हमारा है, उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक वो एजेंडा पाया तकमील तक ना पहुंचे। तो एक बात, चूंकि हमारे मुल्क में एक सैलाब की आफत आई हुई है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो अल्लाह ताला से दुआ है उन लोगों को जो बेचारे सैलाब से मुतासरीन हैं, वो हर तरफ पानी पानी नजर आता है, उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा करे। हमने सीडीए ने एक फैसला किया कि 1 दिन की तनख्वाह सारे एम्प्लॉइज की, पहले अफसरों ने किया, तो मैं आज ऐलान कर देता हूँ कि 1 दिन की तनख्वाह हम मुतासरीन सैलाब फंड में देने के लिए तैयार हैं। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि राजा रईस साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उनके वालिद मोहतरम बहुत हो गए हैं, अभी ये तो कुछ लोग जनाजे में जा सके हैं। आज चूँकि 11 बजे जनाजा था, इधर मसरूफ थे, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरे अपने बहुत ही करीबी अजीज फौत हुए, मेरे भी घर वाले उधर गए हुए हैं, जितने लोगों के भी अजीज़ों कार फौत हुए हैं, उन सब के लिए मैं यहाँ पे किसी से कहूँगा कि वो दुआ मफ़रत करें आखिर में। और साथ ये है कि ये सलाफतगान जो हैं इनके लिए हम अपील करते हैं कि जहाँ जहाँ जो कुछ हो सकता है हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए, और अल्लाह ताला से माफ़ी के खास्तगार है। यकीनन अल्लाह की नाराज़गी है, तो आप सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सबको ये हिम्मत और तौफीक दे कि हम मज़दूरों की खिदमत करें और अपने साथियों के साथ को साथ लेकर चलें। तो कुछ लोगों का अगर गुमान में है ना, तो वो कहते हैं ये सीबीए तभी होता है जब लोग होते हैं, तो ना सीबीए की कोई हैसियत नहीं है। आप माशाल्लाह, मैं खुश हूँ आज कि आप हमारी इस कॉल पे आज तमाम डायरेक्टरेट काम कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया शफीउल्लाह ने
मुनासिब तरीके से आपको बताया। हमने एक वेबसाइट पे लिस्ट भी लगाई है ताकि आप देख सकें कि किसी का अगर नाम नहीं है तो उसका तरीक़ाकार मौजूद है, आप एप्लीकेशन दे के उसमें शामिल हो सकते हैं। तो साथ अदालत में भी ये केस है, ये सारी चीज़ें वज़ाहतन बतानी पड़ेंगी आपको। बताया हमारे एक साथी ने शफीउल्लाह ने कि अदालत में भी वकील किया हुआ, अगर आप सुनते जाते तो आपको समझ होती। तो वहाँ भी हमें जब तक वहाँ से फारिग नहीं होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे जो काम किया और वो बता दिया कि दिन रात काम कर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ दे रहे हैं, खुद लेके जाते हैं, उनको खाने खिलाते हैं। इंतज़ामिया प्लानिंग वाले हमारे साथ वो तावन नहीं कर रहे जो तावन हमें दरकार था, ये बताया है। तो बस अब मैं गुजारिश करूँगा जी, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने तमाम मरकज़ी अहदेदारान, CBA कमेटियों के नुमाइंदगान, तमाम डायरेक्टरेटों से आए हुए और अपनी बहनों, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस शिराजी साहब किसी से दुआ ज़रूर करवा दें जो फौत हुए रईस के वालिद के लिए और जिन जिनके अजीज़ों का फौत हुए। थैंक यू। चौधरी नियाज साहब या अहमद नवाज कादरी साहब या शेर मोहम्मद सैलिम साहब जो भी इधर नज़दीक हैं आ जाएं, ज़रा रईस साहब के वालिद साहब के लिए दुआ करेंगे और सलाब ददगान वो जो सलाब के दौरान दो लोग वफात हो उनके लिए दुआ करेंगे। जी सरदार अफसर के मामूद बहुत हुए हैं, तमाम जिनके भी जी हमारे जितने भी दोस्त अहबाब खड़े जिनके भी वफात पा गए हैं, वालिदैन में से, बहन भाइयों से, ज़रूर सब के लिए दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब हजरात एक मरतबा दुरूद शरीफ, एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ, 3 बार कुल शरीफ और दुरूद शरीफ पढ़ के मेरे मिलत कर दे ताकि तमाम मरहूमीन के लिए दुआ की जा सके। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिरातल लज़ीना अनअमता कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद अस्हाब सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अला ईमान। सूरह फातिहा शरीफ, कुल शरीफ जो भी पाक कलाम पढ़ी गई अपनी बारगाह मुक़द्दसा में मंजूर और मकबूल फरमा। इसका जो भी अजर व सवाब है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुक़द्दसा में हमारी तरफ से अपनी शान के लायक पेश फरमा। आप सल्लल्लाहु के वालिदैन करीमैन, अज़वाज मुहतरात, अहले बैत, सहाबा किराम, औलिया किराम, ताबीन, तबा ताबीन, तमाम तराबीन, मुस्लिमीन मुसलमात की रूह को इसाले सवाब पेश करने की कबूल फरमा। बिलखसूस जो चौधरी यासीन साहब के अज़ीज़ और रईस साहब के वालिद और भी जितने भी उम्मत इस दुनिया भाने से रुखसती फरमा चुकी, सब की रूह को इसाले सवाब पेश करने की कबूल फरमा। उनको सबको दर्जा बदर्जा आला मुकाम अता फरमा। और जो भी आज जलसे में बातें सुनी हैं, जिनके लिए चौधरी साहब ने अमल के लिए कहा, उन सब पर हम अमल करने की तौफीक अता फरमा। सबसे ज़्यादा चौधरी साहब ने इत्तफाक और इत्तेहाद पर कहा है। इसका मतलब यह है कि हम आइंदा आने वाले जलसे में जोग दर जोग शिरकत फरमाएँ। हम सबको मौला करीम अपने साथियों समेत शिरकत करने की तौफीक अता फरमा और इस कार्य खैर में सबको हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से चौधरी मोहम्मद यासीन और इनके तमाम रफ़क़ाए कार जितने साथी हैं, सबको इस मिशन में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमा। मौला करीम मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अंदरूनी बैरूनी ख़तरात खदशात से महफूज फरमा। हमारे मुल्क की सरहदों पे इलामीन जो मुजाहिदीन जो मुजाहिद
پہرا دے رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما الہی میں، ان میں سے جو شہید ہو چکے ہیں سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کے لاحقین کو صبر جمیل و اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، جب تمہیں واپسی یا اللہ زبان پر لا الہ الا اللہ محمد